guys. I hope that now your history is going quite smoothly. Okay. And today the topic of our discussion is contribution of the Jyotiba Phule. In my last video, I gave you the introduction of the Raja Ram Mohan Roy contributions. That is basically the introduction of the social religious reform movement. What is nationalism? And in this video, we shall be discussing about the contribution of the Jyotiba Phule. So why this word, first of all, Phule? This was because they were Malis. Malis means gardeners. They earned their living by growing flowers, so they came to be known as Phule. तो उनके नाम में भी यही पड़ गया. So मालिस थे तो मतलब लोअर कास्ट के थे. अब उन्हें पता था कि लोअर कास्ट के लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, कितनी ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है. सो हिज फर्स्ट गोल वॉज अपलिफ्टिंग द लोअर कास्ट, uplifting the lower caste. So he first of all he wrote a book, very important, गुलामी पता है ना, तो फिर गुलामगिरी, which means what? Slavery. इसका मतलब होता है slavery, गुलामगिरी. Okay, now what this book focused on? It focused on the Brahmin domination, कि ब्राह्मण लोग कैसे हमारी कैसे dominate करे हुए हैं. That is number one. It talked about the Brahmin domination, and the second thing was that it talked about the poverty and the hardship that the people of the lower caste had to follow. So he strongly felt that all the problems of the Dalits means शूद्रास एंड अति शूद्रास, तो ये जो सारी दलित्स की प्रॉब्लम है ना, it can be only solved if they are provided with the proper education. The solution to everything is provision of the education मिले. तो उसने अपनी बुक लिखी, उसने दोनों बताया. ठीक है, जो लोग डोमिनेट कर रहे थे, मतलब जिनकी वजह से वो पॉवर्टी को फेस करना पड़ रहा था उन्हें, तो डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स एंड द पॉवर्टी ऑफ द लोअर कास्ट. एंड ही ऑल्सो सॉल्व दैट, ही ऑल्सो टोल्ड दैट कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स है जो दलित्स की हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द lack of the education. And then after the lower caste, he came toward the difference between the men and women. So what did he observe was right, that men, they are quite superior. They used to pretend कि they are superior to women. But Phule strongly believed that women are more stronger than the man. Why? Because they give birth to the children and they also nurse them. That require quite so much of patience. They are quite stronger as compared to men, as Phule believed. But man kept the women uneducated so that they should not be able to question them. So here also he bring about the education. So he was quite in favor of the education, in the provision of the education. And he also did. What did he do? He, in 1848, established what? Established the first girls' school in India. Established girls' school. And now he saw that घर, तो उन्होंने जो पुअर विडोज थे, जिन्हें कोई रहने के लिए उनकी जगह नहीं थी, उनके लिए उन्होंने ऑर्फनेज बनाया. एग्जैक्टली आफ्टर मे बी 6 years अप्रॉक्सीमेटली, इन 54 उन्होंने क्या बनाया? ऑर्फनेज, इन विच हु यूज्ड टू लिव? पुअर विडोज एंड देयर चिल्ड्रन. ठीक है, विडो रिमैरिज अभी तक आया नहीं था. ठीक है, सो ही also founded, so he established the school for the girls, and after that also he established many schools for whom? Many schools for girls and lower caste. तो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है. यहाँ पे उन्होंने हमें सिर्फ ये बताया है कि अगेन उन्होंने इसी बात के ऊपर फोकस करा कि एजुकेशन. ठीक है, सो
होते तो वो उसे ऐसा लग रहा था, उसे ऐसा लगता था और ऐसा है भी कि जो विमेन हैं वो बेसिकली मैन से सुपीरियर हैं, और मैन को भी ये बात पता है, बट वो उन्हें एजुकेट नहीं करते हैं ताकि वो उन्हें क्वेश्चन ना कर पाएँ कभी भी, ठीक है। अगर वो उन्हें एजुकेट कर देंगे तो वो अपनी वॉइस को रेज करेंगे और वो फिर से वो डाउन हो जाएंगे मैन, ठीक है। एंड सो ही एस्टेब्लिश्ड इन 1848, तो उन विमेन को एजुकेट करने के लिए और उन्हें एक छत देने के लिए उसने गर्ल्स स्कूल भी बनाया, और उन्होंने शेल्टर भी दिया उन्हें, विडोज़ को और चिल्ड्रन को, बाय मेकिंग एन ऑर्फनेज। और इसके अलावा उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों के लिए भी स्कूल्स बनाने स्टार्ट करे। तो जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज करा था, इन्होंने सत्यशोधक समाज करा था व्हेन इन 1873। अभी दिस नेम आई थिंक यू शुड नो, सत्यशोधक समाज। अब इसमें क्या था, इसका मेन गोल ये था मिटिगेट, मतलब खत्म करना, व्हाट, द डिस्ट्रेस एंड द सफरिंग्स ऑफ द दलित्स एंड द विमेन, जो गरीब लोग हैं या विमेन है उनकी सफरिंग्स को कम करना। सो हु वाज द हेड ऑफ द विमेन्स विंग ऑफ सोसाइटी? सावित्री बाई, हिज वाइफ सावित्री बाई, ठीक है। एट द एंड आई विल बी ऑल्सो समराइजिंग इट, सो स्टे हियर। एंड देन what did he tell about the British Empire? So he was also inspired. So all these great personality were actually inspired by Britishers, but it also had certain problems. So he said that कि जो हमारे यहाँ पे फार्मर्स हैं, ठीक है, उन्हें वो हमारे लिए खाना मतलब बनाते हैं, उसने ऐसा अपनी गुलामगिरी बुक में लिखा था कि फार्मर्स की जो लेबर है वो लेकर गवर्नमेंट जो है वो अपनी आर्मी और अपनी सैलरीज वगैरह देती हैं और पेंशन्स देती हैं, ठीक है। और अगर फार्मर्स लोग जो हैं वो अपने आप को पढ़ा लिखा बना लें, एजुकेट कर लें, ठीक है, सो इंग्लिश जो होंगे ना, दे विल हैव टू फ्ली, बिकॉज फिर जो फार्मर्स हैं वो अपनी वॉइस को रेज करेंगे। सो इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने सिर्फ ज्योतिबा फुले के कंट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा कि ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब बाय सीइंग द लोअर पोजीशन ऑफ द लोअर कास्ट एंड ऑफ द विमेन, ठीक है। और इसके रिलेटेड में उसने बुक भी लिखी थी, और उसे ऐसा लगता था कि सारी प्रॉब्लम की जड़ एजुकेशन है, और जो विमेन हैं दे आर एक्चुअली सुपीरियर टू मैन, बट उन्हें इतना ज़्यादा वो एजुकेट नहीं करा जाता, तो वो अपनी वॉइस को रेज नहीं करती हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इन्हें एजुकेट करें, अगर हम इनके लिए स्कूल्स बनाएंगे तो दे रेज देयर वॉइस और हमारी सोसाइटी अच्छी होगी। तो उन्होंने एक समाज स्टार्ट करा, सत्यशोधक समाज, उन्होंने स्कूल्स बनाए, उन्होंने ऑर्फनेजेस बनाए, बहुत कुछ करा, ठीक है। और ये सब कुछ जो सोसाइटी बनी थी, और इस सोसाइटी का हेड कौन था? सावित्री बाई। तो इस सोसाइटी का मेन यही था कि जो दलित्स और विमेन्स की जो प्रॉब्लम, जो स्ट्रेस है उनके, वो जो सफरिंग्स है वो सब खत्म हो जाए। और ब्रिटिश एम्पायर उन्होंने अच्छा मानते थे, बट उन्होंने ये बोला कि वो हमारे साथ बुरा भी कर रहे हैं, दोनों साइड्स, ठीक है। सो आई एंड इट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड बाय बाय।